احمد کو سیکرٹری محکمہ عمل درآمد سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن تعینات کر دیا گیا۔ 20 گریڈ کے افسر شارق احمد تقرری کے منتظر تھے۔ شارق احمد کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیو سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسمبلی سرکار نے شارق احمد کو سیکرٹری محکمہ عمل درآمد سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن تعینات کر دیا ہے۔ شارق احمد جو 20 شہر کے افسر ہیں جو تقرری کے منتظر تھے، ان کو یہ جو ہے سابق سیکرٹری جو ہے ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ سے ان کو عہدے سے سابق صوبائی وزیر سید اویس قادر شاہ جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ تھے، ان کی سفارش پر وزیر اعظم نے ہٹایا تھا، لیکن اس وقت جو اسمبلی خود نے ایک بار پھر ان کو سیکرٹری محکمہ عمل درآمد تعینات کر دیا گیا، جبکہ ریاض حسین سمرو کے تبادلے کے بعد محکمہ عمل درآمد میں سیکرٹری کا عہدہ خالی تھا، لیکن آج جو ہے شارق احمد کی تنازع کر کے محکمہ SNG نے باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دی۔ جی ٹھیک ہے آزاد، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول، ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 36 پیسے مہنگا ہو کر 190 روپے 200 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہو کر 192 روپے 50 پیسے کی بلندی پر جا پہنچا۔ یورو اور برطانوی پاؤنڈ بھی 3 روپے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ ہلکان، ڈالر نے بلندی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک دن میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 36 پیسے مہنگا ہو کر 190 روپے 2 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.72% کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق 1 جولائی سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 32 روپے مہنگا ہوا، جس سے پاکستانی بیرونی قرض میں 4000 ارب روپے کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتے درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ انٹر بینک کے اندر ڈالر 2 روپے بڑھ گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 193 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور انٹر بینک پہ تقریباً 191 کے قریب ٹریڈ ہوتا رہا، جو کہ ایک روپیہ بڑھنے سے ہمارے ملک کے ہزاروں ارب روپے ہمارے قرضے کی مد میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 20 بلین سے گر کے 10 بلین رہ گیا ہے، اور جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو کسی کو کوئی غرض نہیں ہے ملک سے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہو کر 192 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 3 روپے مہنگا ہو کر 203 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 3 روپے مہنگا ہو کر 239 روپے کا پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 80 پیسے مہنگا ہو کر 92 روپے اور سعودی ریال 60 پیسے مہنگا ہو کر 50 روپے 80 پیسے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ اشرف خان۔ ڈالر مہنگا ہونے کے بعد مقامی صرافہ بازار میں سونا 1300 روپے مہنگا ہو کر ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1 تولہ سونے کی قیمت 1,35,700 روپے پر جا پہنچی۔ سونے کی خریداری اب خواب بن گئی۔ ملک کی تاریخ میں سونا نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے کے بعد 1 تولہ سونا 1300 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 1,35,700 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا بھی 1,115 روپے مہنگا ہو کر 1,16,341 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $11 سستا ہو کر 1,852 فی اونس پر آ گیا ہے۔ صرافہ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے اثرات کو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں پڑے، جس سے سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک عمران رانا نے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی سختی سے تردید کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں ترجمان کے الیکٹرک عمران رانا نے کہا، شہر میں شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور رجسٹرڈ صارفین کو بذریعہ SMS مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ عدم ادائیگی پر منقطع ہونے والے کنیکشنز کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں۔ بجلی کی فراہمی بلوں کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ دعویٰ کیا کہ 20% سے کم نقصان والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ 400 کے قریب صنعتی فیڈرز بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ لانڈی، بھینس کالونی اور کچھ دیگر علاقوں میں عدم ادائیگی پر کچھ کنیکشنز منقطع کیے گئے ہیں۔ محمد اقبال میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنرز اور بلدیاتی اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں متوقع مانسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے ترجیحی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مزید جانیں گے رضوان احمد سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے۔ متوقع مانسون بارشوں کے سلسلے میں جو مسائل جنم لیتے ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اور بلدیاتی اداروں کے سینئر افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ برساتی نالوں کی صفائی کا جو ہے بارشوں سے قبل مکمل کیا جائے گا، جبکہ تمام ڈپٹی کمشنر اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبے پر یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اپنے اپنے علاقوں میں نشیبی علاقوں اور برساتی نالوں پر چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی کریں اور اس کو کلیئر کرایا جائے۔
तशीबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप और तरबियत याफ्ता अमला तैनात करने के भी जो है वो अहकाम कमिश्नर कराची की जानिब से मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर और बल्दियाती अफसरान को दिए गए हैं। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन आइंदा दिनों में शहर में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 13 और 14 मई को शहर में शदीद गर्मी होगी। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, शहर में गर्मी की लहर बरकरार, आइंदा चंद रोज भी गर्मी करेगी कड़ेवार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, 13 और 14 मई को कराची शदीद गर्मी की लपेट में होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची को सिंध के दीगर अजला की तरह हीट वेव का खतरा तो नहीं, मगर 13 और 14 मई को गर्मी शहरियों का खूब इम्तिहान लेगी। इस दौरान शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है, समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। यहाँ अलबत्ता जा सकते हैं 2 दिन, जो 13 और 14 मई है उसमें टेम्परेचर 40 तक जा सकता है, लेकिन 40 भी खासा होगा इसलिए कि यहाँ पर नमी का फैक्टर ज़्यादा होता है, 40-50%, यानी नमी थोड़ी सी कम होगी उन 2 दिनों में, लेकिन फिर भी 40% के आसपास रहेगी, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कराची के मौसम में समंदरी हवाओं का बहुत बड़ा अमल दखल है। समंदरी हवाएं वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, नेमत है कराची के लिए कि इसके टेम्परेचर को वो माइल्ड या मॉडरेट रखती है। अदरवाइज आप देखेंगे इनलैंड आप जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत आपको 40s में और हाई 40s में भी मिलते हैं। वस्ती सिंध और मुल्क के दीगर हिस्से इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जिसके असरात कराची पर भी मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि शहर में सूरज दिन में तारे दिखा रहा है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ आदिया नाज, सिटी 21। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती। इमरान खान इलेक्शन में जाकर क्या कर लेगा? 4 साल में क्या कर लिया? सिलेक्टेड को सियासी ताकत से मिलकर हटाया है। हमारा गेम प्लान इंतखाबी और नैब इस्लाहात का है। नवाज शरीफ से बात की और उन्हें समझाया है। इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। मुझे लोगों के बुझे चूल्हे जलाने हैं। बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन दांधी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं। उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिलके, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टीज। आपको डिफिकल्टीज है, मुझे डिफिकल्टीज है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है। मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन हमसे कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठें, और उनके बैठने से उनका इनपुट भी लेना चाहता हूँ, अपना इनपुट भी उनको बताना चाहता हूँ। पर सॉल्यूशंस होंगे आउट ऑफ द बॉक्स। इन द बॉक्स जिस तरह इकोनॉमिस्ट करते हैं और जिस तरह हमेशा ये करते रहे हैं कि जी उस वक्त इकोनॉमी छोटी थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, आपने 2% नीचे कर दिया, 2% कम कर दिया, किस्सा चल जाता था। आज नहीं चलता। आज 50,000 रुपये में भी जो बंदा है उसको तकलीफ है, बिजली इतनी महंगी है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हमने एक प्रोग्राम देना पड़ेगा हमें, जो पूरे सिंध में, हम पाकिस्तान में, हम सोलर सिस्टम जो हैं उसके पावर प्लांट्स खुद ना बनाए, इंडिविजुअल्स को हम सॉफ्ट
लोन पे दें। मीर जाफर मीर सादी की सरबराही में चलने वाली हुकूमत आज लंदन चली गई। काबीना शायद नवाज शरीफ को वापस लाने गई है। साबिक विभाग के वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, नून लीग माजी में फौज के खिलाफ बयानबाजी करती रही। किसी शख्स को इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो मीर सादिक और मीर जाफरों से भरी हुई है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के, पाकिस्तान की सियासत के, यानी कि पाकिस्तान के सारे फैसले करने जहाज भर के लंदन चले गए। और ये पूरी कैबिनेट आज जहाज में बैठ के चलेगी है जनाब लंदन। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को लाने गए होंगे। पाकिस्तान फौज हमारा दिफा करती आई है। हमारे लिए पाकिस्तान फौज के जवान शहीद होते आए हैं। इदारों को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, इदारों को ताकतवर करने की जरूरत है। इकोनॉमी में फरमा रहे हैं कि जी मैं बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दूंगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो आपने पैसे बाहर रखे ना, उसमें से $2.5 अरब डॉलर मंगा लें वापस। भाई नवाज शरीफ खुद ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी प्लेटलेट गिर गई थी, वो अपने अस्पताल में इलाज नहीं करा सके, वो ओवरसीज चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकार के कत्ल केस में मुलजिम शहजाद की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए सजा का अदम करार दे दी। मुलजिम शहजाद को पुलिस एहलकार बिलाल के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस के आगा की सरबराही में बेंच ने पुलिस एहलकार के मुकदमा कत्ल में मुलविस मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए सजा कल अदम करार दे दी। पुलिस और इस्तगासा ठोस शहादतें पेश करने में नाकाम रहे। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने अक्टूबर 2017 में साहिबदाद गोट में मुनशात फरोशी के इत्तला पर पहुंचने वाले पुलिस पर फायरिंग की थी। सिंध हाई कोर्ट ने बारिश के दौरान DHA डूबने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर माहिरीन की रिपोर्ट आने तक समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू बारिश के दौरान DHA डूबने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि DHA और CBC के इंजीनियर्स के पास इतनी सलाहियत नहीं कि निकासी का निज़ाम बना सकें। समुंदर में गटर लाइन डाल रहे हैं, पूरा समुंदर आलूदा हो जाएगा। अदालत ने CBC के वकील से मुकालमे में कहा कि अच्छे इंजीनियर से पूछें, वो बताएं आपको। माहिरीन से पूछें कैसे बारिश के पानी की निकासी की जाए। अदालत ने समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने लियारी एक्सप्रेस वे में मुतासिरीन को मुतबादिल प्लाट्स देने से मुतालिक दरख्वास्तों पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मामला हल करने के लिए अगस्त तक की मोहलत दे दी। सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेस वे में मुतासिरीन को मुतबादिल प्लाट्स देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट के DA अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं क्या पेशरफ्त हुई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि प्लानिंग कर रहे हैं, मसला हल कर लिया जाएगा, 1 से 2 माह की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगस्त तक की मोहलत दे रहे हैं, मुतासिरीन को मुतबादिल प्लाट्स का मसला हल करें। सिटी कोर्ट में वाक़ अदालतें मखदूश होने लगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी 8 नंबर की छत का प्लस्तर गिर गया। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी 8 नंबर की छत का प्लस्तर गिरने से अदालती अमला महफूज रहा। वकला ने कहना था अदालतों की मुनासिब देखभाल नहीं हो रही। मुनासिब वक्त पर ताज़ीन और आराइश न होने की वजह से अदालतों की हालत खस्ता हाल होती जा रही है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू ने PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा किया। एयर वाइस मार्शल हुसैन अहमद सदीकी सदर एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट ने इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी ने PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट की टीम को असर हाजिर के जदीद चैलेंजेस से नबरो आज़मा होने के लिए आला दर्जे के तालीमी मयार के हुसूल पर मुबारकबाद दी। एयर वार कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए एयर चीफ ने मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कराची के नेशनल स्टेडियम में विमेंस क्रिकेट का कैंप जारी है। बॉलिंग कोच सलीम जाफर का कहना है कि पूरे मुल्क में विमेंस क्रिकेट टीम का टैलेंट हंट हो रहा है। आने वाले वक्तों में अच्छी टीम सामने आएगी। श्रीलंकन वुमेंस टीम के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम में तरबियती कैंप में शरीक 26 खवातीन खिलाड़ी अपनी खामियों पर काबू पाने में मगन हैं। पाकिस्तान वुमेंस टीम के बॉलिंग कोच साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर का कहना था कि नए टैलेंट के लिए पूरे मुल्क में टैलेंट बंट रहा हो। सलीम जाफर का कहना है कि नए टैलेंट के लिए पूरे मुल्क में टैलेंट हंट हो रहा है। हमारे क्रिकेटर्स में 50 ओवर्स के लिए एनर्जी लेवल कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने थोड़ा ही गैस किया, मैंने पिछले भी देख रहा हूँ कि 50 ओवर्स की गेम की जो एनर्जी है वो शायद हमारा थोड़ा एनर्जी लेवल वीक है। 20 ओवर्स को अगर आप देखें, हम 20 ओवर्स बहुत बुरा नहीं खेल रहे। वुमेन्स क्रिकेट के तरबियती कैंप में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वुमेन्स क्रिकेटर की सलाहियतें निखारने के लिए आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 24 मई से शुरू होने वाली पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका वुमेन्स सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक की खवातीन टीमों के माबैन T20 और वनडे इंटरनेशनल सीरीज के तमाम मैचेस साउथ एंड क्लब कराची में खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए मेहमान टीम 19 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 सीरीज
सीरीज़ में शामिल 3 मैचेस 24, 26 और 28 मई को खेले जाएंगे। आईसीसी वुमेंस चैंपियनशिप में शामिल 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 3 और 5 जून को खेले जाएंगे।